Assalamualaikum to everyone. Welcome to my channel Mavish Bhatti. I am Mavish. Today we will start very fresh topic, that is history of microbiology. So whenever we start to study about microbiology, the base is history. History means the record of past, known as history. So let's discuss about history of microbiology. There are three eras that are involved in history of microbiology. Okay, number first era, that is discovery era. Number second, transition era. Number third, golden era. Number first era, that is discovery era. In discovery era, the scientists are Aristotle, Rogan Bacon, Antony van Leeuwenhoek. In second era, that is transition era. In transition era, the scientists are Francisco Reti, John Needham, Lazzaro Spallanzani. Number third era, that is golden era. In golden era, the scientists are Joseph Lester, Paul Ehrlich, Louis Pasteur, Richard Petrie, Robert Koch, Alexander Fleming, Fanny Alishmius Hesse, and Edward Jenner. So whenever we start to study about history of microbiology, always three questions comes in our mind. Number first, who? Who was scientist? Number second question, what? What did he do? And number third, how? How did he perform experiment? The first scientist in history of microbiology is Aristotle. He said that living organisms came from non-living organisms. Aristotle ने कहा कि जो living organisms होते हैं वो non-living organisms से ही produce होते हैं, non-living organisms से ही हमें मिलते हैं. Simply he said that life originated from non-living matter. Okay? He told that many living organisms exist in large amount but we cannot see. तो एरिस्टोटल ने हमें ये भी कहा कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस दुनिया में मौजूद हैं बहुत लार्ज अमाउंट में, लेकिन उन ऑर्गेनिजम्स को हम देख नहीं सकते. Number second scientist, that is Rogan Bacon. Rogan Bacon said that living organisms which are very small enter in our body to cause disease. तो रॉगन बैकन ने हमें ये कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं जब वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो हमें डिजीज़ होती है. The third scientist, that is Antony van Leeuwenhoek. The existence of microbial world was totally unknown before the invention of an instrument called microscope. माइक्रोस्कोप के बनने से पहले, इन्वेंट होने से पहले माइक्रोबियल वर्ड का हमें कोई पता नहीं था. अननोन थी माइक्रोबियल वर्ड हमारे लिए. The discoverer of microbial world was Dutch tradesman and scientist Antony van Leeuwenhoek. तो जिसने माइक्रोबियल वर्ड को डिस्कवर किया उस डिस्कवरर का नाम जो है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक है. Using his
handcrafted microscope, he was the first to observe and describe single-celled organisms. तो इसने माइक्रोस्कोप जो बनाई थी इसने खुद, वही माइक्रोस्कोप में इसने ऑब्जर्व किए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को. His microscope was able to give clear image at magnification from about 50 to 300 times. तो जो माइक्रोस्कोप इसने इन्वेंट की थी, उस माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन थी वो 50 से 300 टाइम की थी. He described the microbial world and named as animalcules. तो इसने माइक्रोबियल वर्ड को डिस्क्राइब किया और नाम दिया एनिमलक्यूल्स का. एनिमलक्यूल्स का मतलब होता है वेरी टिनी. एनिमलक्यूल्स यानी बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स. All the unicellular microorganisms that we know today, like bacteria, protozoa, fungi, algae, were first described by a scientist, Anthony van Leeuwenhoek. तो जो भी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो आज हैं और पहले भी थे, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गी, तो फर्स्ट जिसने डिस्क्राइब किए थे इन सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, उसका नाम एंथोनी वैन ल्यूवेनहुक है. He is called father of microbiology. एंथोनी वैन ल्यूवेनहुक को माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है. एंड डिस्कवर्ड इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप, और इसने एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्वेंट किया, यानी कि माइक्रोस्कोप को. एंथोनी वैन ल्यूवेनहुक इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप एंड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन towards the establishment of microscope. He observed different small things from rainwater, pond water, blood, scrapings from his own teeth. He observed these all things by using his microscope. तो इसने ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की अपने माइक्रोस्कोप को यूज़ करके. He saw something is moving in drop of water and he called them animalcules. तो इसने कहा वाटर के ड्रॉप में कोई चीज़ है जो मूवमेंट कर रही है, तो उसको इसने नाम दिया एनिमलक्यूल का. He made sketches of these animalcules and communicated to Royal Society London. तो इसने स्क्रैचेस बनाए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसने माइक्रोस्कोप पे ऑब्ज़र्व किए, उसके इसने स्क्रैचेस बनाकर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में सेंड कर दिए. तो उस जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है उसने फिर इसका लेटर जो है पब्लिश कर दिया था. Francisco Ratti, he showed that maggots would not arise from decaying meat when it is covered. तो फ्रांसिको रेड्डी ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें 2 जार्स ली थी यार, बोतल्स ली थी, जार्स भी कह सकते हैं, बोतल्स भी. तो इसने क्या किया, दोनों में मीट रखा था और एक को कवर कर दिया, एक को कवर नहीं किया था. तो जिसको कवर नहीं किया था वो तो ओपन ही था, तो उसमें जो फ्लाइज थे उसने प्रोड्यूस किए थे मैगोट्स, और जो कवर थी उसमें फ्लाइज इंटर नहीं हुई थी. तो इसने एक थ्योरी दी थी कि जो मैगोट्स है, ओके, ये जो मैगोट्स है ना, ये अराइज होते हैं तब जब जो मीट है वो कवर ना हुआ हो. John Needham, he proposed that tiny organisms arose spontaneously. He covered the flask with cork
स्टिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर। तो इसने एक फ्लास्क लिया, उसको कवर कर दिया, लेकिन फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपीयर हुए थे। तो इसने ये थ्योरी दी थी। Lazaro Spallanzani, he said that boiled broth would not give rise to microscopic form of life। तो लेज़ारो स्पेलेंज़नी ने ये कहा था, जब हम कोई ब्रॉथ लेंगे और ब्रॉथ को जब हम बॉयल करेंगे यानी कि हीट देंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो राइज नहीं होंगे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस नहीं होंगे जो बॉयल ब्रॉथ होती है, क्योंकि वैसे भी हीट करने से माइक्रो ऑर्गेनिज़म की जो ग्रोथ है वो नहीं होती और माइक्रो ऑर्गेनिज़म किल हो जाते हैं। जोसेफ लिस्टर, ही इज़ फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो जोसेफ लिस्टर जो है वो एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कहा जाता है। ही डिस्क्राइब्ड प्योर कल्चर। तो इसने प्योर कल्चर जो है डिस्क्राइब किया, और जो प्योर कल्चर इसने डिस्क्राइब किया था उस प्योर कल्चर का नाम यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जो नाम था वो स्टेफाइलोकोकस था। तो स्टेफाइलोकोकस को एज अ प्योर कल्चर इसने डिस्क्राइब किया। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो एंड एडिनबर्ग एंड लेटर एट किंग्स कॉलेज लंदन। He also used carbolic acid as a spray on wound or during surgery। तो इसने कार्बोलिक एसिड भी यूज़ किया था। कार्बोलिक एसिड का दूसरा नाम फिनोल है। तो कार्बोलिक एसिड को एज ए स्प्रे इसने यूज़ किया था वाउंड के ऊपर, या फिर जब सर्जरी होती थी उस टाइम इसने यूज़ किया था। एंड देयर वाज मार्क रिडक्शन ऑफ वाउंड, इन्फ्लामेशन, सेप्सिस। तो उस टाइम इसने देखा कि कार्बोलिक एसिड के यूज़ करने से वाउंड जो है या फिर सेप्सिस या इन्फ्लामेशन जब हो जाती है तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ जो है या फिर वो जो ज़ख़म है वो कम हो जाता है। पाउल इलरिच, ही वॉज अ जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट। इसको ये जर्मन का बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता था। ही इज़ फादर ऑफ कीमोथेरेपी। इसको फादर कहा जाता है कीमोथेरेपी का। ही डिस्क्राइब्स बैक्टीरिया कॉल्ड इरिचिया। तो जैसे कि इसका नाम है पाउल इलरिच, तो इसने एक बैक्टीरिया जो है वो डिस्क्राइब किया था, उसका नाम भी जो है इरिचिया है, इसके नाम के जैसा। ही इंट्रोड्यूस्ड एसिड फास्ट स्टैनिंग। Basically, acid fast staining is a staining in which we differentiate acid fast and non-acid fast bacteria। तो उस वो बैक्टीरिया जो एसिड फर्स्ट होते हैं और एसिड फर्स्ट नहीं होते, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एसिड फर्स्ट स्टैनिंग करते हैं। ये एसिड फर्स्ट स्टैनिंग इंट्रोड्यूस की थी फर्स्ट टाइम पाउल इलरिच ने। He also said that organisms cause disease can selectively kill with chemical drug। तो इसने ये भी कहा कि ऑर्गेनिज़म्स जो डिज़ीज़ काज करते हैं उसको हम किसी सिलेक्टिव केमिकल ड्रग अगर देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म की किल हो जाएगी। दिस लीड हिम टू प्रोड्यूस asphenamine, the first synthetic drug that destroy the syphilis microbe in body। तो इसने ये एंटीबायोटिक ड्रग जो है वो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस की थी कि जो सिफिलिस माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ काज करते हैं उनके खिलाफ। ल्यूइस पास्चर, ही गेव अस लिक्विड कल्चर मीडिया। तो इसने हमें लिक्विड कल्चर मीडिया दिया। दो तरह के मीडिया होते हैं, एक सॉलिड
मीडिया एंड देन लिक्विड मीडिया। तो लिक्विड मीडिया जिसने हमें दिया था वो ल्यूइस पास्चर था। ही आल्सो गेव अस फर्मेंटेशन मेथड, इसने फर्मेंटेशन का मेथड भी दिया था एंड पास्चराइजेशन का मेथड भी दिया था। पास्चराइजेशन बेसिकली जो है एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिर्फ उनको किल करते हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल नहीं करते, ओनली पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किल करते हैं। ही गेव अस जर्म थ्योरी भी इसने दी थी। ही आल्सो गेव अस आटोक्लेव जो इंस्ट्रूमेंट है जो आजकल हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। तो आटोक्लेव जिसने दिया था वो ल्यूइस पास्चर था। इट इज़ अप्रूव वन थ्योरी अबायोजेनेसिस, और अबायोजेनेसिस थ्योरी को इसने डिसअप्रूव कर दिया था। ल्यूइस पास्चर गैव 3 वैक्सीन्स, 3 तरीके की वैक्सीन्स जो हैं वो हमें ल्यूइस पास्चर ने दी थी, कॉलरा की, एंथ्रेक्स एंड रेबीज़। इसको बहुत आसान तरीका है 3 वैक्सीन्स को याद करने का। आप कार जो है याद कर लो, C फॉर कार, A फॉर जैसे कि C कार में होता है CAR, ओके, C फॉर कॉलरा, A फॉर एंथ्रेक्स, R फॉर रेबीज़। रिचर्ड पैट्री डेवलप द पेट्री डिश। पेट्री डिश इसने जो है डेवलप की थी। अब पेट्री डिश क्या होती है? ये कंटेनर है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं। रॉबर्ट कोच ही डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग डिजीज़। तो रॉबर्ट कोच ने जो है बैक्टीरिया का जो रोल है उसके लिए बताया कि डिज़ीज़ में बैक्टीरिया का रोल क्या है। ही आल्सो परफेक्टेड द टेक्निक ऑफ आइसोलेटिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। ही यूज्ड गैलेटिन टू प्रिपेयर द सॉलिड कल्चर मीडिया बट इट वाज नॉट एन आइडियल। तो रॉबर्ट कोच ने हमें गैलेटिन भी जो है वो बताई कि रॉबर्ट कोच ने हमें सॉलिड कल्चर मीडिया है ना उसके लिए बताया, और जो ल्यूइस पास्चर था उसने हमें लिक्विड कल्चर मीडिया के लिए बताया था। इसने गैलेटिन यूज़ की थी सॉलिड जो कल्चर मीडिया होता है सॉलिड वाला उसको प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन इसने कहा कि वो आइडियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गैलेटिन जो है वो एक प्रोटीन है, ओके, एंड इट इज़ डाइजेस्टेड बाय मैनी बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोटोलाइटिक एंजाइम, और फिर प्रोड्यूस करते हैं। जब डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया इस प्रोटीन को तो उस टाइम ये प्रोड्यूस करते हैं एक एंजाइम, एक्सो एंजाइम, प्रोटोलाइटिक एक्सो एंजाइम होता है जिस एंजाइम का नाम है गैलेटिनेस। अब इस गैलेटिनेस का काम क्या होता है? ये हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, विच मेल्ट व्हेन द टेम्परेचर राइज अबाउट 25 सेंटीग्रेड। ओके, ये मेल्ट हो जाता है तब जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर राइज हो जाता है। कॉक पोस्टुलेट्स। रॉबर्ट कोच ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे जिसकी वजह से उसको कहा जाता है कॉक पोस्टुलेट्स, उन पोस्टुलेट्स को। तो नंबर फर्स्ट पोस्टुलेट क्या थी? द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ प्रेजेंट इन एवरी कॉज ऑफ डिजीज़। इसका मतलब है कि जब हमें कोई डिज़ीज़ होती है, सपोज़ एक पर्सन है उसको डिज़ीज़ है टीबी की, तो हमें पता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही टीबी कॉज करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही होगा। सेम डिजीज़ अगर किसी और को होती है तो हमें पता होगा सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। इसीलिए इसने कहा द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ प्रेजेंट इन एवरी कॉज ऑफ डिजीज़। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम ही होगा, अगर डिजीज़ सेम है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सेम ही होगा। The microorganisms are isolated from the dead tissue of dead animal and a pure culture is prepared। तो इसने कहा सेकंड पोस्टुलेट में जो एनिमल होता है
तो उनके टिश्यू से हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो लेते हैं, आइसोलेट करते हैं एंड उनका प्योर कल्चर बनाते हैं। पास्चुलेट 3 में इसने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्योर कल्चर आर इनोक्यूलेटेड इनटू हेल्दी ससेप्टेबल एनिमल, द डिजीज़ इज़ रिप्रोड्यूस। तो इसने कहा वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने आइसोलेट किया था सेकंड पोस्टुलेट में, जिसका हमने प्योर कल्चर बनाया था, वही ऑर्गेनिज्म थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, उसी और प्योर कल्चर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किसी ससेप्टेबल एनिमल के अंदर इंसर्ट करेंगे। ससेप्टेबल एनिमल वो होता है जो हेल्दी एनिमल हो, डिजीज़ से फ्री हो। तो उस हेल्दी एनिमल में जब हम इंसर्ट करेंगे तो फोर्थ पोस्टुलेट में क्या होगा, द आइडेंटिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइसोलेटेड, वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें आइसोलेट होगा जो पहले हुआ था वही, and recultivated from the tissue specimen of the experimental animal. Alexander Fleming, he discovered the penicillin from Penicillium notatum that destroys several pathogenic bacteria. तो इसने जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन वो डिस्कवर की थी, और वो पेनिसिलिन जो है पेनिसिलिन नोटेटम उसमें से बनी थी। ये पेनिसिलिन क्या है, ये डिस्ट्रॉय करती है बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को। Fanny Aloysius Hesse, he proposed the use of agar-agar in culture media. तो इसने agar-agar का यूज़ किस तरीके से किया जाता है कल्चर मीडिया में, उसको प्रपोज्ड किया। एडवर्ड जेनर, he was the first to prevent from smallpox disease. तो ये पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया कि स्मॉल पॉक्स की डिज़ीज़ से किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है। ही डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन, तो इसने वैक्सीनेशन की जो टेक्निक थी उसको डिस्कवर्ड किया था। ही इंजेक्टेड काउ पॉक्स मटीरियल वैक्सीनिया इनटू स्मॉल पॉक्स, तो इसने क्या किया था कि काउ पॉक्स का मटीरियल या फिर वैक्सीन जो है वो स्मॉल पॉक्स में इंजेक्ट की थी और इसी तरीके से स्मॉल पॉक्स से प्रिवेंट किया था। वैक्सीन जो है ये लिया गया है वैक्का, दैट मीन्स काउ, इन ऑनर ऑफ जेनर्स काउ वैक्सीन टू वेरियस मटीरियल यूज टू इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये एडवर्ड जेनर का था। Thank you so much guys for watching my video. Hope you like my video and please subscribe my channel.